آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں دہشت گرد تنظیم TTP پھر سے سرگرم، مقامی آبادی کا احتجاج۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کا معاملہ، جانیں گے فلڈ کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ یونٹ کے بارے میں۔ ہمیں جو ہے نا الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے جانور جو ہے نا اتنے کہ بہ گئے ہیں۔ اور آپ کو ملوائیں گے K2 سر کرنے والی باہمت پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی سے، کیونکہ راک اور آئس ہے تو بہت کیئرفلی پاؤں رکھنا پڑتا ہے، سیم ٹائم اوپر دیکھنا پڑتا تھا کہ پتھر تو نہیں آ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ خیبر پختونخوا میں عسکریت پسند گروہوں کی سرگرمیاں شروع ہونے کے خلاف صوبے کے مختلف علاقوں میں امن مارچ اور احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان عسکریت پسندوں کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مقامی عہدیداروں اور کارکنوں نے اتوار کے روز باڑہ میں امن ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ 2 دن پہلے ضلع بنیر کے انتہائی دور افتادہ علاقے امازئی میں 30 سے 35 مسلح عسکریت پسندوں کے سامنے آنے پر عوامی نیشنل پارٹی کی اپیل پر امن مارچ ہوا تھا، جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ امن مارچ کے شرکا عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ مظاہرے اور ریلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوئیں، جب لوور دیر میں PTI کے ایک صوبائی رکن اسمبلی پر قاتلانہ حملہ ہوا اور سوات میں 2 فوجی عہدیداروں اور 1 پولیس افسر سمیت 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ سوات اور لوور دیر کے علاوہ محمد اور باجوڑ کے قبائلی اضلاع میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے TTP کے صوبے میں سرگرم ہونے کے ان دعووں پر ابھی تک کوئی واضح بیان نہیں آیا، لیکن وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اعلیٰ صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شمیم شاہد اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں اس وقت وہاں کی سچویشن ہے کیا۔ شمیم، کچھ ہفتے پہلے ہم نے سوات میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں رپورٹ کیا تھا، آپ اس پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب کون سے مزید علاقے ہیں جہاں پہ TTP دوبارہ سے سرگرم ہوئی ہے، اور ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں جن پر لوگوں کو تشویش ہے؟ حال ہی میں یہ سوات اور دیر کے بعد جو درادم خیل ہے وہاں پر پمپلیٹ تقسیم ہوئے ہیں، اور اگزئی اور ہنگو میں بھی پمپلیٹ تقسیم ہوئے ہیں، جس میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ طالبان یہاں پر موجود ہے، اور اگر آپ کو حکومت ہو، حکومتی اداروں، حکومتی عہدیدار ہو یا کسی اور کے خلاف کسی قسم کی شکایت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ درادم خیل اور اگزئی ہنگو میں جتنے بھی ٹیلی فون نمبر دیے گئے واٹس ایپ کے لیے تو وہ تمام افغانستان کے نمبر پر ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی بھی واقعات ہو رہے۔ آج بھی ڈی خان میں ایک پولیس وین پر حملہ ہوا ہے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، ایک ڈرائیور ہلاک ہوا ہے۔ اسی طرح 2-3 دن پہلے یہاں پر بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں مختلف، یہ اورگزئی میں وہاں پر پولیس پر حملہ ہوا تھا جس میں 3 افراد مارے گئے تھے۔ تو ہے ملیٹنٹس بھی موجود ہے، ملیٹنٹس سر بھی اٹھاتے ہیں، کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ ایک اطلاع یہ جو اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں جو واقعات ہوئی ہیں اس میں 18 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 34 سویلین ہے، اور اگست میں جو واقعات ہوئی ہیں وہ تو جولائی سے کم ہے، مگر اس میں جو کیجوالٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز جو آپ مینشن کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن لوگ اس سے پہلے، اگر ہم سوات آپریشن اس سے پہلے والا دیکھیں یا جس سے پہلے جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے مسلسل ایک آپریشن ہوا تھا، اس وقت لوگ خوفزدہ تھے۔ اب اس بار لوگ باہر نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو اب لوگ زیادہ منظم ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اس بار جو ہے نا لوگ بہت زیادہ منظم ہے۔ یہ جو باڑہ میں کل اتوار کو جو مظاہرہ ہو رہا ہے، ریلی نکالی جا رہی ہے، تو اس کے آرگنائزر ہے شاہ فیصل افریدی۔ اس کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان لوگوں نے ایک
धोखे में आके, मजहबी धोखे में आके इन लोगों को जगह दी थी, इन लोगों के साथ ताउन किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब वो मज़ीद जगह नहीं देंगे, इनके साथ ताउन नहीं करेंगे। मेरे ख़्याल में इस वक्त लोगों का जो जज्बा है और लोगों की जो रवैया है तो वो किसी भी तौर पर तालिबान के हक़ में नहीं है। स्वात में भी जलसे हो गए, यहाँ पर बाजोड़ में भी हो गए, बुनेर में भी हो गए, दीर में भी हो गए। इससे पता चलता है कि लोग अब तैयार नहीं है कि वो तालिबान को हाथ दे या तालिबान के साथ ताउन कर दे। और हुकूमत को भी यही पता है, हुकूमत को भी इल्म है, क्योंकि जो हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसकी बहुत ज़्यादा मुखालिफत की जा रही थी। जो उनके साथ मुआहिदों का जो टेक्स्ट है, जो ड्राफ्ट है, उस पर तमाम सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लिहाजा मेरे ख़्याल में अब जो हालात है वो 9/11 के बाद यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तालिबान मुंतकिल हुए थे, तो अब वही सूरत हाल नहीं है। मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। आपके ख्याल में बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अमेरिका के तालिबान से दोहा मुआहदे के नतीजे में अफगानिस्तान से निकलने के बाद पिछले तकरीबन 1 साल से पाकिस्तान का TTP के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इन मुज़ाकरात में तालिबान की एक अहम शर्त कबायली अज़ला की पुरानी हैसियत में बहाली है। इस बारे में इलाके के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कबायली अमायदीन क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के उमर फारूक ने जानने की कोशिश की। ट्राइबल यूथ मूवमेंट की वुमेन विंग की सदर और ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली गुलरुख शाह इंज़िमाम के बाद की सूरत हाल पर तंजीम के मेंबरान के साथ एक मशावरती इजलास में शिरकत कर रही है, जहां इंज़िमाम के बाद पेश आने वाले मसाइल पर बात हो रही है। वो कहती है कि इंज़िमाम के वक्त किए गए वादे ताहाल पूरे नहीं हुए। तो जो हम तवक्कुआत कर रहे थे तो अभी तक वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगर हम जुडिशल वगैरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जैसे कि थाना कचहरी वाले मतलब बात वगैरह वो हुई है। नौजवानों ने कबायली अजला के खैबर पुख्तनख्वा में इंज़िमाम में अहम किरदार अदा किया। ट्राइबल यूथ मूवमेंट भी इसमें शामिल है, जिसका पुराना नाम फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। हमने इख्तिजाजी किए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स किए, उसको हमने एक मंशूर रख दिया कि ये हम इंज़िमाम की खामी है और मर्जर करे, हमारे मतलब फाटा की जो है ना खैबर पुख्तनख्वा के साथ मर्जर करे। हम ये चाहते हैं सारे जो पार्टीज़ थे, सियासी पार्टीज़, एक पार्टी के अलावा, उसने हमारे साथ दिया। तहरीक तालिबान ने इन मुज़ाकरात में जो शराइत रखी हैं, इनमें तमाम कैदियों की रिहाई, कबायली अजला से फ़ौज के मुकम्मल इनखला और फाटा की पुरानी हैसियत की बहाली शामिल है। दूसरी जानिब कबायली अजला के कुछ रहनुमा भी फाटा के इंज़िमाम से खुश नहीं और वो इसको कबायली अवाम की उमंगों के मुनाफी समझते हैं। कबायली मलक बिस्मिल्लाह खान अफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि आइन के मुताबिक कबायली अजला की हैसियत की तब्दीली के लिए ज़रूरी था कि तमाम कबाइल के जरगे की जानिब से इसकी तौसीक़ की जाती, ताहम वो तालिबान के मुतालबे को दुरुस्त समझते हैं। तो हमारा तो एक आईनी और कानूनी हम मुतालबा कर रहे हैं, और मुतालबा जो है ना वो कमज़ोर बंदा करता है, और उनकी तरफ से तो शराइत हैं। ये एक शर्त है कि अगर आप मुस्तकिल अमन कायम करना चाहेंगे तो फाटा के इंज़िमाम को वापस करें। हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि फाटा इंज़िमाम को वापस किया जाए और फाटा के अवाम से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। सूबाई पार्लिमानी लीडर और MPA बिलावल अफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि कबायली अजला में अमन बहाल हो रहा है, वहाँ तालीम और निज़ाम इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो रही है, ताहम तालिबान इन इलाकों की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश में है। तालिबान का ये कहना कि हम मर्जर को नहीं मानते, वो आपके इल्म में भी है और मेरे इल्म में भी है। कुछ इश्यूज़ है उनके साथ। अब ना वहाँ पे कोई बंदूक घुमा सकता है, ना कोई गैर कानूनी काम हो सकता है, ना कोई गैर कानूनी गाड़ी घुमा सकता है, और ना कोई गैर कानूनी बंदा वहाँ पे रह सकता है, और ना कोई पराया बंदा वहाँ का लोकल के अलावा कहीं और बाहर का बंदा वहाँ पे नहीं रह सकता। एक सॉफ्ट मैसेज है। गुलरुख भी समझती है कि अगर हुकूमत ने तालिबान के दबाव में आकर इंज़िमाम को वापस करने का ऐलान किया तो ये तमाम कबायली अफराद, ख़ास तौर पर यहाँ रहने वाली ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी। रिवर्स होने से तो वही है कि जो पहले की ख़वातीन की जो सूरत हाल थी उसी में दोबारा चली जाएंगी। मतलब आप ये कह लें कि
100 साल पीछे उसको धकेल दिया जाएगा, क्योंकि जो फीमेल्स की राइट है उस पर बात नहीं हो सकी। जो ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में वो आई हैं, इनसे महरूम हो जाएंगी, वही एजुकेशन से महरूम हो जाएंगी। तो वही बात है कि फिर जिस तरह वो पहले महरूमियों का शिकार थी, तो मर्जर रिवर्स होने के बाद वो उसी महरूमियों का दोबारा शिकार हो जाएंगी। कबायली अजला का इंज़माम 25वीं आइनी तरमीम के तहत अमल में लाया गया है। मकामी सियासी जमातें और कबायली अजला के अवाम तालिबान के साथ होने वाले किसी भी मुज़ाकरात में पार्लियामान की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ की अक्सरियत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंज़माम से खुश तो है, लेकिन वो यहाँ तरक्याती कामों की सुस्त रवी से भी नाला हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। UNFP या यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में कम से कम 6.5 लाख ख़वातीन हामला हैं। इन हामला ख़वातीन को महफूज तरीके से अपनी प्रेगनेंसी के अमल से गुजरने के लिए तिबी देखभाल की भी ज़रूरत है। आलमी इदारे के मुताबिक इन 6 लाख से ज़ायद ख़वातीन में से तकरीबन 73,000 ख़वातीन की डिलीवरी 30 दिन के अंदर मुतवक्के है, जिसके लिए तजुर्बाकार अटेंडेंट्स, नौज़ायदा बच्चे की सेहत की सूरत हाल और सहूलियात की ज़रूरत होगी। मैं 7 माह के हमल से हूँ। मेरी कमर में शदीद दर्द है और मुझे काली खांसी है। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मेरा घर बारिश में मुनहदिम हो गया था। कोई भी गरीबों का ख्याल नहीं करता। यहाँ अफसरान सिर्फ तस्वीर बनवाने आते हैं। डॉक्टर्स आए थे, 1 दिन की दवा दी और चले गए। वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान में मौजूद टीम इस वक्त सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल की मुसलसल कवरेज कर रही है। सिद्रा डार जो अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गई, इस वक्त कराची वापस आ चुकी हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने मुतासरा इलाके में हामला ख़वातीन को किस हाल में देखा। जिस तरह WHO के मुताबिक तकरीबन 900 हेल्थ सेंटर्स थे जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन हैं? जी बिल्कुल, WHO ये कह रहा है कि तकरीबन 900 सेंटर्स मुतासर हुए हैं, उनमें से 180 तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। और ये वही सेंटर्स हैं जहाँ पर अमूमन इन ख़वातीन को तिब्बी इमदाद मिलना ज़रूरी थी। जो हमने विज़िट किया और मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, वहाँ पर हमारी जो ख़वातीन से बात हुई तो बहुत सी ख़वातीन इस बात पर शर्म महसूस कर रही थी कि वो कैमरे पे ना बताएं, लेकिन उन्होंने हमें अलहदा से बताया कि कोई 7 माह के हमल से और कोई 8 माह के हमल से, और उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि आने वाले दिन उनके लिए मज़ीद मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल ऐसा है कि अभी भी कुछ सैलाबों की पेशगोई है कि वो आ रहे हैं। सिंध इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, बलूचिस्तान इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, और जो ख़वातीन हैं उनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। जो आर्जी शेल्टर्स हैं, स्कूल हैं जहाँ पर वो हैं, तो वहाँ पर भी उनके पास कोई बिस्तर नहीं है, कोई चारपाई नहीं है। हमने ये भी मनाजर देखे, जो हामला ख़वातीन हैं वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ एक चारपाई पर बैठी हुई हैं क्योंकि बारिश है, और उसके ऊपर सिर्फ कह सकते हैं कि एक तरपाल डला हुआ है और उसके नीचे वो बैठी हुई हैं। हमारी कुछ ऐसी ख़वातीन से भी मुलाकात हुई जिनकी अभी 3-4 दिन पहले जब हम कवरेज पे थे तो उससे पहले उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और उनकी भी हालत कोई ठीक नहीं थी, लेकिन अस्पताल वहाँ पर चूँकि ख़ुद ज़ेरे आब थे और वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उनको दाइयों की मदद से ही डिलीवरी करवानी पड़ी। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात सामने आ रही है वो ये कि 73,000 ख़वातीन हैं जिनको अगले माह उन्होंने ज़चकी के मरहले से गुजरना है। उनके लिए फ़ौरी तौर पर जहाँ बुनियादी सेहत की सहूलियात होनी चाहिए वहाँ बच्चे की देखभाल के लिए भी होनी चाहिए। क्या इतनी तादाद में डॉक्टर्स या मेडिकल कैंप्स वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे? और जो ख़वातीन जिनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि जो गाँव देहात में रहने वाली औरत है वो खासी टफ है और वो ऐसे मरहलों से गुजर जाती हैं, इसमें ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि ये आम हालात नहीं हैं। वो घरों में ज़रूर रहती हैं, खेतों में ज़रूर काम करती हैं, लेकिन इस वक्त एक आफतज़दा इलाके में जहाँ उनको बुनियादी ज़रूरियात मिलना चाहिए थी वो भी इस वक्त फुकदान है। तो ऐसे में उनकी प्रेगनेंसी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। उनको कैल्शियम की और फौलादी दवाइयों की ज़रूरत है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके अंदर खून की कमी है। एक औरत पहले ही वहाँ पर 6-6, 7-7 बच्चे पैदा कर चुकी है तो उसकी इस प्रेगनेंसी में उसके लिए कितनी
कॉम्प्लिकेशंस तो हो ये काफ़ी सकती हैं, क्रिटिकल हो ये सब सकता है चीजें इन मुश्किल हो सब सकती बातों के हैं। लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ इदारे सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए काम कर रहे हैं। लाहौर में फ्लड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम से सैकड़ों मील दूर जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की निगरानी कैसे हो रही है। फ्लड एमरजेंसी सेंटर्स मुख्तलिफ इदारों से रब्ता करके किस तरह लोगों को रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं, जानने की कोशिश की समन खान ने अपनी इस रिपोर्ट में। हाँ जी, इस पर कॉल करें। और आपकी बस्ती कौन सी है, तहसील का कौन सा? सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम में इस वक्त पंजाब के 19 इलाक़ की मॉनिटरिंग की जा रही है जहां सैलाबी पानी ने तबाही मचा रखी है या जहां सैलाब का खदशा है। ये इस तरह की आफात के दौरान हंगामी हालात से निमटने वाले तमाम इदारों के लिए राब्ता मरकज़ की हैसियत रखता है। फ्लड सीज़न हमारा स्टार्ट होता है 15 जून टू 15 अक्टूबर। 15 जून से पहले जो है हम सारे डिपार्टमेंट्स को लेटर्स लिख देते हैं कि वो अपने फोकल पर्सन PDM में भेजें, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, सिविल डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, लोकल गवर्नमेंट है, सोशल वेलफेयर है एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें डाटा आता है, उनका बुलेटिन आता है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो है फ्लड वार्निंग सेंटर से हमें गेजेस आ रही होती हैं। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की जानिब से यहाँ तैनात डॉक्टर अतिया सुल्ताना अपने इदारे को सैलाब से मुतासरा मवेशियों की रिपोर्ट तैयार करके भिजवाती हैं, जिसके लिए उन्हें अपने इदारे के फील्ड वर्कर्स से रिपोर्ट्स मिलती हैं। हमें जो है ना एवरी टाइम जो है ना अलर्ट रहना पड़ता है। कुछ लोग बता रहे होते हैं कि जी हमारे जानवर जो है ना इतने मतलब के बह गए हैं या कोई मतलब के मर गए हैं, तो वो सारी रिपोर्ट जो है ना इसमें बताते हैं साथ। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है और जहाँ ये फ्लड में जानवर बीमार हुए हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और साथ कुत्ते मुदाफ़त काम में तो दोबारा उनको जो है ना रीवैक्सीनेट कर रहे हैं। इस फ्लड में हमें 19 जगह से ये फ्लड ब्रीच करना है। अगर इन केस ऑफ 5 फ्लड आता है तो उसमें 13 इरिगेशन के ज़िम्मे हैं कि वो ब्रीच करेंगे राइट साइड ऑफ द कैनाल, और जो है ना वो रेलवे करेगा अपने स्ट्रक्चर्स को देखते हुए वो भी राइट साइड ऑफ द कैनाल। हम लेफ़्ट साइड इसलिए नहीं करते क्योंकि लेफ़्ट साइड पर हमारे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, आबादी होती है। PDMA के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन खालिद मसूद फारूका समझते हैं कि वसाइल बढ़ाए जाएं तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। हम एक फ्लड लाइक सिचुएशन में हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, इसको और भी ज़्यादा वेल इक्विप्ड होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जो हमें अवेलेबल है उसकी अब हम ये ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम के अंदर ऑपरेट करने के लिए डेडिकेटेड स्टाफ की इरादा से ट्रेन डेडिकेटेड स्टाफ की ज़रूरत है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समझती है कि इदारों के दरमियान मुस्तहकम राब्ते से कुदरती आफात के दौरान मसाइब के शिकार अफराद की आवाज़ कम वक्त में मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाई जा सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि तमाम इदारे अपने काम में महारत रखने वाले एहलकारों को ही यहाँ तैनात करें। ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह बना के और उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टियर है उसमें किस तरह के लोग बैठने चाहिए। जब तक डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, यहाँ उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है और नीचे वालों को पता हो कि इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करनी है। जो इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से या निचले टियर से, उस इन्फॉर्मेशन देने वाले को क्या अंडरस्टैंडिंग है कि उस इन्फॉर्मेशन की अहमियत क्या है। सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे मुतासरीन की शिकायत या किसी भी तरह की एमरजेंसी के लिए PDMA की हेल्पलाइन 1129 24 घंटे काम कर रही है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा हर ज़िला में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनका बराह रास्त राब्ता सूबाई एमरजेंसी कंट्रोल ऑफिस से है और यहाँ इकट्ठे होने वाली तमाम तर मालूमात नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर्स तक पहुँचाई जाती हैं। अथॉरिटी के आला ओहदेदारान समझते हैं कि मालूमात और राब्ते का ये सिलसिला यहाँ काम करने वाले अमले की तरबियत से मज़ीद बेहतर हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आज़ादी के 75 साल, सुनिए इन 75 वर्षों की तारीख। उनसे जो गवाह हैं कामयाबियों और नाकामियों के, जो याद करेंगे उस गुजरे वक्त के अच्छे और बुरे को, और उनको जिन्होंने की जदोजहद समाजी आज़ादी और बराबरी की। बयान करेंगे माजी के हक़ाइक़, खेल और आर्ट से लेकर जमहूरियत और आमरीत तक। सुनिए उनको जो शाहिद हैं उन 75 सालों के। VOA उर्दू की खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान के 75 साल में।
اور آج کے شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی باہمت کو پیما سے جنہوں نے حال ہی میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر کے ایک ایسی پاکستانی خاتون کو پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا جس نے پاکستان میں 8000 میٹر سے بلند 3 چوٹیوں کو سر کیا ہو۔ نائلہ کیانی سے ملوا رہے ہیں وائس آف امریکہ کے نذر الاسلام۔ رواں سال 22 جولائی کو کوہ پیمائی کی تاریخ میں ایک تاریخ ساز دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جب ایک ہی دن 140 سے زائد کوہ پیماؤں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کی۔ انہیں خوش قسمت اور باہمت کوہ پیماؤں میں نائلہ کیانی بھی شامل تھیں۔ گزشتہ سال جب پہلی ہی کوشش میں انہوں نے 8035 میٹر بلند گاشر بروم 2 سر کی تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ کوہ پیما کمیونٹی کے لیے بھی حیرانگی کا باعث تھا، جس کے بعد انہوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کا عزم کیا۔ K2 شروع سے لے کے ٹاپ تک بہت زیادہ سٹیپ ہے کہ وہاں پہ ایون ریسٹ کر کے پانی پینے کے لیے بھی نا آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے، اتنا سٹیپ ہے۔ اور اس کے بعد راک فال بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے کانسٹنٹلی جب ہم اینڈ پہ آ رہے تھے، نیچے آ گئے تھے ہم، تو مجھے میرے کانوں میں بار بار آوازیں آ رہی تھی راک راک، کیونکہ جب اوپر جا رہے تھے تو ہر 1-2 منٹ بعد بہت بڑا پتھر نیچے تیزی سے آ رہا ہوتا تھا، تو اس سے ہمیں بچنا پڑتا تھا، تو ہمیں نیچے دیکھنا پڑتا تھا کہ پاؤں کہاں رکھ رہے ہیں کرامپون سے، کیونکہ راک اور آئس ہے تو بہت کیئرفلی پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ سیم ٹائم اوپر دیکھنا پڑتا تھا کہ پتھر تو نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت نائلہ کیانی کو پاکستان میں 8000 میٹر بلند 3 چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے ہی چیلنج قبول کرنے والی شخصیت ہیں۔ مجھے اپنے آپ کو پروف کرنی تھی، مجھے اپنی بچوں کے لیے رول ماڈل بننا تھا کہ اگر کوئی گول بنایا ہے تو اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے تو کچھ بھی ہر چیز پاسبل ہے۔ رواں برس مہم جوئی کو سیاحت کے لیے تاریخ ساز سیزن قرار دیا جا رہا ہے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور نانگا پربت سمیت دیگر بلند و بالا چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے دنیا بھر سے 1700 کے قریب کوہ پیماؤں نے پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کیا۔ اس سال بہت بڑی تعداد میں لیڈیز آئیں، جس میں صرف K2 پہ 20 سے زیادہ لیڈیز جو خواتین تھیں ماؤنٹینئرز، جس میں لوکل، جس میں نائلہ کیانی اور سمینہ بیگ، اور اس کے علاوہ مختلف ممالک کی خواتین شامل تھیں، انہوں نے K2 سبمٹ کیا ہے۔ K2 کی چوٹی پر پہنچنے سے قبل کے خیالات کو یاد کرتے ہوئے نائلہ کیانی نے کہا کہ وہ بہت زیادہ نروس تھیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی، ایک 3 سال کی ہے، ایک 1.5 سال کی ہے، ان کو چھوڑنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اور رسکی کام بھی ہے، لیکن جب K2 پہ باٹل نیک کے پاس کیو لگی ہوئی تھی لوگوں کی اور ہم بلو آئس پہ کھڑے تھے، تو مجھے ایک خوف اچانک سے آیا کہ کیا ہوگا اگر میں واپس نہیں جاؤں اپنی بیٹیوں کے پاس۔ تو پھر میں اپنے آپ کو میں نے فوکس میں لایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، بالکل بھی انرجی نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے لیے واپس گھر جانا ہے، تو میں نے ان کو ایز اے اسٹرینتھ یوز کیا ایکچولی۔ تو وہ میری ویکنیس بالکل بھی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اسٹرینتھ دی، اور ہر جگہ جہاں پہ مجھے بہت زیادہ تھکن فیل ہوا اور بہت زیادہ پرابلم آیا، میں نے ان کو یاد کر کے میک شیور کیا کہ غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہو۔ نائلہ کیانی کا کہنا ہے کہ کوہ پیمائی کے دوران خواتین کوہ پیماؤں کے مسائل مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں، تاہم خوشی ہے کہ انہیں نوجوان لڑکیوں کے جانب سے پیغامات موصول ہوتے ہیں کہ اسپورٹس کو کیسے شروع کیا جائے، جس سے واضح ہے کہ نوجوان نسل میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ نائلہ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ پہلے پاکستان میں 8000 میٹر بلند 5 چوٹیاں سر کرنا چاہتی ہیں۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپڈیٹ کے لیے اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔